Ishita, please unmute all. Hello students, કેમ છો બધા? મજામાં. મજામાં. મજામાં? हाँ सर. We are meeting after a long period of time. Yeah. 15 days gap. હા. Because fortunately or unfortunately, all the festivals are on Saturday. Where on Saturday? બધા તહેવારો Saturday પર જ હતા. So we not get a chance to have a Zoom meeting. Okay. Have you enjoyed the lectures? Yes. All of you? Yes, Yes, sir. Now after the today's lecture we end unit number 1. हमारा unit number 1 खत्म हो गया. Now in last 3 lectures anybody having any doubts? कोई पण doubt हो relating with the types of the audit, the good auditor, auditing standard, objects, advantages. કોને ઘરે કથા ચાલે છે? Please mute yourself. જેની ઘરે કથા ચાલતી હોય મ્યુટ કરી નાખે, કારણ કે કથા કરવાનો વારો મારો છે આજે. Okay, so let's start with, in your whole syllabus, તમારા unit number 1 ના syllabus માં the important part from the exam point of view is the main part is the types of the audit. The second is advantages of the auditing. Third is qualities of the good auditor. So these 3 particular topics are very important from the MCQ point of view, even from the descriptive point of view. Repeatedly सालों से इनके ऊपर सवाल आते रहे. Qualities of the good auditor. Many times they ask what are the 10 qualities? Enumerate any 10 qualities, any 7 qualities, any 5 qualities. यानी जितने का मार्क्स हो गए वो हिसाब से आपको क्वालिटीज मेंशन करना है. एंड इजी गो. अब क्वालिटीज जो मैंने कल लेक्चर अपलोड किया, यानी जो आप लोगों ने लेक्चर्स आज देखा, जो मैंने लेक्चर्स आज देखा, दैट मींस जो लेक्चर मैंने आज अपलोड किया रिलेटिंग विद द अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, AAS, Audit and Assurance Standard. In your unit number 1, there is a standard number 1. Audit Assurance Standard number 1 is the part of your syllabus. और Auditing Standard 1 क्या कहता है? All the content of the qualities of a good auditor. पहले हम लोग शुरुआत करते हैं qualities of the good auditor से. किसी को कोई भी query हो, concern हो with the qualities of the good auditor. See, our video lecture is not a descriptive. આપણા જે video lecture છે તે descriptive નથી. Right? It's a smaller version. For the descriptions, you need to refer our pamphlet. Pamphlet ને તમે ધ્યાનથી વાંચો. It gives all the details point wise. I explain all the details in my lectures. પણ એમાં પણ જો કોઈ વાંચ્યા પછી કોઈને કંઈક doubt હોય, so we are here. The purpose of the Zoom session to solve your doubts queries. So anybody having any doubts, then throw your question. No doubts? All are expert? એટલે હું તમને લોકોનો ઓડિટર કહું છું. બે લેંગા ને 4-5 ટી-શર્ટ ને બધું ઘણું બધું. It sounds good that nobody having any doubt. Jeet Pathak,
today you having any doubts? Jeet, Yes, sir. yes, do you having any doubt? No, sir. I do not have any doubts. Okay, but have you referred the full material and have you seen all the videos? Yes, sir. I have seen all the videos and I have referred the pamphlet. Okay, because see, all of you, both the things should be running parallelly. બંને સાથે ચાલશે. Yes, sir. As well as the pamphlets that you have to refer. Do not take audit lightly. It's a detailed 100-mark comprehensive paper, and unless and until you listen or you watch my videos carefully, it will be little bit difficult for you to answer, because MCQ માં તો એવું લાગશે તમને audit માં કે બધા જ questions A, B, C, D all are correct answer. Right, unless and until you read the pamphlet line by line. તમે line by line pamphlet ના વાંચ્યું હોય ત્યાં સુધી તમને ખબર પડે નહીં. Okay, so there is nothing with the qualities of the good auditor. See, in the qualities of the good auditor, I have mentioned few words that auditor is a watchdog and not a blood-of-hound. Auditor is always a watchdog and not a blood-of-hound. એટલે કે audit કરવા જ્યારે પણ જતો હોય, the quality of the auditor is always watchdog. Watchdog मतलब नजर रखो सबके ऊपर, जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है. Everything you need to observe. And not a blood of hound. Blood of hound यानी काटने वाला कुत्ता नहीं होना चाहिए कि जाके बस वहीं पे that suspicious mentality, भाई सभी चोर है, आज जाके तो मैं बहुत बड़ा fraud पकड़ने वाला हूँ, वो mentality के साथ नहीं जाना है. Because ultimately the audit is you are giving your opinion. તમે તમારો opinion આપો છો. Right? So audit conclusion is the opinion, and opinion might be differ from person to person. आज मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैंने अपना ओपिनियन दिया, मेरी जगह कोई और ऑडिट कर रहा है, वो अपना ओपिनियन दे रहा है. राइट, सो दिस आर द वर्ड्स दैट यू ऑलवेज हाईलाइट. और ये सारे एमसीक्यू भी आएंगे आपको एग्जाम में. So with the part of the qualities of the good auditor, I'm not finding any much difficulties with it. Okay, in the types of the audit, any types of the audit which is painful to you? Any types of the audit which is painful to you? Vidya? हाँ सर. બોલો, વાંચ્યું છે કે નથી વાંચ્યું? વાંચ્યું છે. હા, તો કોઈ જગ્યાએ કોઈ તકલીફ પડી હોય? સર, ક્વોલિટીઝ ઓફ ગુડ ઓડિટર માં ઓનેસ્ટી અને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસ અને ઇમ્પાર્શિયાલિટી માં શું ડિફરન્સ? એમ જ તો પોઈન્ટ થયો ને. See, qualities of the good auditor is mainly focus on personal qualities. Honesty is a different thing and straightforward is a different thing. That means you must always be the honest person. That means honest person. તમારી duty જે તમારે, that means hire you for a particular object and you need to observe the object honestly. અને straightforward નો મતલબ શું? straightforward એટલે you need to give your opinion straightforward. હું તમને કહું ક્વોલિટીઝ માં ક્યાં ફરક પડે છે કે honesty અને straightforward માં. Practically, see, because I am acting as an auditor in many companies, so what are the practical difficulties that we are facing? Good morning, sir. નવા ઓડિટર જોઈન થયા લાગે છે. Okay. Straightforward, that means when you are giving, yes, I explaining what the experience what I had. કે તમે જ્યારે પણ કંપનીની વિરુદ્ધ કમેન્ટ કરો, when you are opposing on the books of accounts, on the behavior, on the many of the matters, ભાઈ 10 લાખ 5 લાખ નો કોઈ fraud તમને દેખાતો હોય, when you are highlighting and when the management involves themselves. See, તમે જો સ્ટાફની ચોરી પકડી લો ને, then the management always happy. But when you point out the management, તો સમજી લો next year you are not going to act as an auditor of this company. पता चल रहा है? यानी जब भी आपने कोई अगर हाईलाइट कर लिया
और मैनेजमेंट को बताया कि सर ये 3 लाख रुपए का है, यहाँ पे ये मैं क्वालिटी, दैट मींस दिस इज द क्वालिफिकेशंस दैट आई एम गोइंग इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये मैं ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिखने वाला हूँ कि 3 लाख रुपए की ऐसी डिटेल है जो मुझे मिल नहीं रही है, सो दैट इज सम सस्पिशंस आर देयर। तो मैनेजमेंट बोलेगा सर प्लीज यार साइन कर दो, प्लीज आप रिपोर्ट साइन कर दो, हम देख लेंगे, बराबर है। वो देख लेने वाली बात जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऑनेस्टी भी आ गई, देख लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक प्रेशर क्या रहता है कि अगर आपने साइन कर दिया तो नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। हमने रीअपॉइंट नहीं करे, तो व्हाट हैपन, यू लॉस वन क्लाइंट, यू लूज योर क्लाइंट, तमे तुम्हारा क्लाइंट खोई ना। So here the honesty is there, but you always be straightforward when you are commenting. You always be the straightforward when you are commenting. Now, buddy Riddhi? Okay, anyone else? In the types of the auditing, any types? कोई types में तुमने ना खबर पड़ी होए? By the way, last lecture, that is the yesterday's lecture, auditing standard. Auditing standard is not that too important from the exam point of view. That I need to clarify. It's not that too important. Yeah, MCQ, they might ask you 1 or 2 questions from the auditing standard, but from the descriptive questions, they are not going to ask you, because ultimately we already extract the questions from the auditing standard. Extract એટલે આપણે એમાંથી already questions બનાવી લીધો છે, like the auditing standards. I mute everyone. Now anybody having an doubt, then they can ask, or we can conclude the today's session, because when there is no doubts, there is no meaning. Or I need to personally check. I need to ask you now. जो તમારો questions પૂછવાનો વારો પતી ગયો તો મારો વારો હું ચાલુ કરું. Yes, anyone? Okay, if you refer the material, I have given some differences in the material as well. I have given the differences in the material as well. Everyone please open the pamphlet. Direct जन पासे pamphlet से open करे. Everyone open the material. It should be handy. It should be handy. I hope and believe that everyone having material. Dhruvi from Subhanpura, do you have the material? Dhruvi from Subhanpura. Please unmute and answer. Okay, in the material, open the difference between the continuous audit and annual audit. I think it is on the page number 17. Open the material. It should be on the page number 17. Please check. 19 number na page ઉપર છે. 19 number na page ઉપર છે. Okay, check difference between the continuous audit and annual audit. Sneha from Nizampura. Please unmute your. Yes, sir. Okay.
मिला आपको पेज? कंटिन्यूअस ऑडिट Yes, और एनुअल yes. ऑडिट का डिफरेंस? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द मीनिंग कंटिन्यूअस ऑडिट? Sir, continuous audit means the auditor is going to the company and auditing it on within 15 days, or the audit is within 15 days, or it is done in a huge company where auditing is generally necessary. Okay. First of all, for all the companies, audit is compulsory. For all the companies, whether choti badi koi bhi company ho, audit is mandatory. But the continuous audit generally prefer when the company size is big, when there is a huge volumes in the business, then the continuous audit is preferably. And what about the annual audit? What about the annual audit? Annual audit is done only at the annual audit is done when the year is ending, the financial year is ending once in a year. It is Once in a year. That means for- after. अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऑडिट में पहले ऑडिट किया जाता है या पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार? सब बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार होंगे फिर ऑडिट होगा. अच्छा. Now the questions for Nandini from OP Road. Please unmute yourself. Yes, Nandini. Yes, sir. ऑडिट कब होता है? अकाउंट्स तैयार होने के बाद या तैयार होने के पहले? When I am saying accounts ready, that means I'm talking about the final accounts. जब तक बैलेंस शीट बन जाए, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो जाए, उसके बाद ऑडिट करना होता है या फिर पहले ही बाद में करना होता है? अगर वो फाइनल मतलब एट मतलब फाइनल ईयर में कर रहा है तो उसको मतलब प्रिपेयर होना चाहिए, और अगर क्वार्टरली कर रहा है तो आई गेस इट मस्ट बी लाइकवाइज. Okay, it depends on the nature of the audit. That means it depends on the size of the company. अच्छा, ऐसा हो सकता है. Now my question is a little bit we can say googly. ऐसा हो सकता है कि मैं ही books of accounts लिखता हूँ. That means I am writing the books of accounts of the company and I am also auditing of the same. Is it possible? No, I don't. It's not possible, right? That means I am writing the books of the accounts and I am also auditing. ये पॉसिबल नहीं हो सकता. लेकिन इंडिया में 70% केस में यही हो रहा है प्रैक्टिकली. यू डोंट हैव टू मेंशन थियोरेटिकली, पर प्रैक्टिकली यही हो रहा है कि मैं ही कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता हूं और बाद में मैं ही उसका ऑडिट भी करता हूं. यानी आप लोग आंसर आप ही दो और बाद में उसका असेसमेंट भी आप ही करो. बराबर है? तो इंडिया में 70% केस में ये हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए. नए कंपनीज एक्ट आने के बाद एक रिस्ट्रिक्शंस रखा गया दैट ऑडिटर कैन डू एंड कांट डू. क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, वो हम आगे नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे. लेकिन मैं थोड़ा हाईलाइट दे दूं बिकॉज दिस इज पैरेलली इंपॉर्टेंट. ऑडिटर को ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है दैट यू कैन नॉट गिव द सर्विसेज ऑफ बुक राइटिंग. यू कैन नॉट गिव द सर्विसेज ऑफ बुक राइटिंग. એટલે કે તમે એકાઉન્ટ્સ લખી શકો નહીં. That is a restrictions on the auditors of the company. Not only on the company, but anywhere they cannot write the books of the accounts. तो चार्टर अकाउंटेंटों ने इनका भी रास्ता निकाल दिया because ultimately it's a bread and butter for them. अगर मुझे कोई भी छोटी मोटी कंपनी का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना है, कोई भी छोटी मोटी प्रोप्राइटर कोई भी बिजनेस का मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना है, आई डेफिनेटली चार्ज 20,000 a year minimum. 20,000 rupees a year. Say it's a golden opportunity for you. It's a golden opportunity for you. I'm always keep telling to my students, you are in the last year, just need a computer or a laptop, install the Tally and writing the books of the accounts. एक कंपनी चालू करो, client will automatically, if you providing the good services, કશું એમાં કોઈ expertise ની જરૂર નથી. When you are writing the books of the accounts, no expertise required.
It requires only the transactions, purchase, sales, expenses. બરાબર છે. કમ્પ્યુટર બધું એની મેથડ કરશે. ઓટોમેટિકલી જર્નલ એન્ટ્રી પોસ્ટ થઈ જશે, ઓટોમેટિકલી લેજર્સ, ટ્રાયલ બેલેન્સ, બેલેન્સ શીટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, day by day, every moment your balance sheet automatically tally, and you can generate a good revenue. 1000 rupees per month, 12 મહિનાના 12000 રૂપિયા per client. આવા નાના મોટા બાજુમાં પ્રોવિઝન સ્ટોર હોય, આ છે તે છે. See, because they don't have a time. So capitalize your relations, capitalize your contacts. So this is an opportunity. So mainly we professionals, what we are doing, because here government restrict us that we cannot write the books of the accounts. અમે books of accounts લખી શકીએ નહીં. તો અમે શું કરીએ ખબર છે? અમારે ત્યાં જે સ્ટાફ હોય, અમારા ત્યાં જે what we can say articles હોય, તો articles ને આપી દઈએ કામ, ભાઈ આના books of accounts તું લખી નાખજે. अल्टीमेटली ऑडिट तो मुझे ही करना है. रिस्ट्रिक्शन किसको दिया गया? रिस्ट्रिक्शन दिया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट को, स्टाफ को नहीं दिया गया. ही कैन इंडिविजुअली राइट द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. यानी सिर्फ दिखावा क्या कर रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहा है कौन? स्टाफ लिख रहा है. बराबर है, मिस्टर एक्स लिख रहा है, लेकिन मिस्टर एक्स तो अल्टीमेटली लिख तो मैं ही रहा हूं, लेकिन स्टाफ को काम दे दिया है. राइट? यानी ओके, रिफर द डिफरेंस बिटवीन continuous audit and the annual audit. This is again an important question. आपके पैम्पलेट में टिक करके रखो. This difference is important. And if you go through that means if you go through the difference here, the first is the commencement. Continuous audit का commencement what a continuous है. बड़ी कंपनी ये चलता ही रहता है, यानी एक बाजू ट्रांजेक्शन होते रहेंगे और दूसरी बाजू आपका ऑडिट चलता रहेगा. But in case of the annual audit, the commencement, when the books of accounts gets ready, then it will commence. Completion continuous audit में तो client आता है, client के यहाँ पे auditor जाता ही रहेगा, तो every moment, every month on the periodical basis it will complete the task. But in case of the annual audit, once the accounts ready, उसके बाद see अभी मेरा सीजन ही चल रहा है ऑडिट का. अभी मेरा 2019-20 का अकाउंट्स खत्म हो गया 31 मार्च 2020 को, एंड प्रेजेंटली वी आर इन द मंथ ऑफ द ऑगस्ट. राइट? जो कंपनी की सारी एजीएम कब होने वाली है? इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो अभी हम लोगों का क्या चल रहा है? ये सीजन चल रहा है ऑडिट का. सारी कंपनीज अपने यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो वी आर विद द सोशल डिस्टेंसिंग एंड विद द एनवायरमेंट, वी आर ऑल्सो डूइंग ऑडिट वर्किंग फ्रॉम होम. घर पे बैठ के ऑडिट कर रहे हैं. क्लाइंट्स को बोल दिया है कि आपके टैली की फाइल्स हमें भेज दो, वी आर गोइंग टू चेक. राइट? और जहां पे सस्पिशियस होगा तो फिर स्टाफ वहां पे आपके यहाँ पे पर्सनली विजिट करेगा. Then the third is when done. जब ये अकाउंट्स लिखना शुरू हो जाएंगे तो कंटिन्यूअस ऑडिट भी शुरू हो जाएगा, और जब अकाउंट्स लिखना खत्म हो जाएंगे तब एनुअल अकाउंट्स को, तब एनुअल ऑडिट को हमें शुरू करना है. मोरल चेक. अच्छा, ये मोरल चेक के ऊपर थोड़ा जानकारी ले ले. लवीना सुभानपुरा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Lavina from Shubhanpura, yes. What is this moral check? Moral check means what? Moral check એટલે ઓડિટિંગ કરે તો આપણે મોરલ ચેક એટલે કે ક્લાયન્ટ કેટલા રાઈટ લખે, કોઈ મિસ્ટેક નથી કરતા કે પછી એટલે એનાથી ખબર પડે કે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ સરખી રીતે લખે છે કે નહીં. એને મોરલ ચેક કહેવાય. આપણે એવું કહીએ છે ને આ તારી મોરલ ડ્યુટી છે. હા, આપણે એવું કહીએ છે ને આ તારી મોરલ ડ્યુટી છે. ધીસ ઇઝ યોર મોરલ ડ્યુટી. એનો મતલબ શું? એટલે કે જે ક્લાયન્ટ નો જે સ્ટાફ હોય એની મોરલ ડ્યુટી છે જોવાનું કે એટલે ઓડિટ બરાબર રીતે કરવાનું. ક્લાયન્ટ નો સ્ટાફ થોડી બેટા ઓડિટ કરે, ઓડિટ તો મારે કરવાનું છે. હા, कोई बात नहीं. जीत, yes, what is moral check? Could you please explain what is moral check?
Sir, it is a fear in staff that like auditor is going to surprise visit anytime and will check all the transactions. So he fears the fraud to do the frauds. Okay, that means some moral pressure on them. Yes, exactly. हाँ, ऑडिटर का स्टाफ रेगुलरली आ रहा है, हर महीने आ ही जाता है, और कभी भी आता है 1 से 15 तारीख में, कभी भी आ जाएगा, कभी भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेंगे, राइट? सो अवर वर्क इज अप टू डेट. चोरी करना तो बात की बात है, अवर वर्क शुड बी अप टू डेट, क्योंकि अगर हमने वर्क अप टू डेट नहीं किया है तो वो रिपोर्ट कर देगा, वो बॉस को बता देगा, वो मैनेजमेंट को बता देगा, तो एक प्रेशर रहेगा कि ना भाई આપણું કામ આપણે ચોક્કસ પ્રમાણે કરીએ. અત્યારે આ જે ક્વેશ્ચન આન્સર થઈ રહ્યા છે આ તમારા પર મોરલ ચેક જ છે. આ ખબર પડી રહી છે કે કોણ વાંચી રહ્યું છે, નથી વાંચી રહ્યું, કોણ વિડિયો જોઈ રહ્યું છે, નથી જોઈ રહ્યું. So that is one of the moral check. So that is possible in case of continuous audit, because continuous audit માં auditor regularly visiting at the client's place. But in case of the annual audit, વર્ષ પતે પછી આવે ક્યારે, somewhere in the June, July, August, right? ત્યાં લગીનમાં તો બધી ખીચડી બની ગઈ હોય. I committed the fraud of 50,000 rupees in the month of June 2019. June 2019 માં મેં ફ્રોડ કર્યો હતો 50,000 રૂપિયાનો. હવે એનું ઓડિટ હવે થશે, હવે ઓગસ્ટમાં ઓડિટ ચાલશે, બરાબર છે? ત્યાં લગીનમાં તો બીજા 5-10 લાખ રૂપિયાનું કરી નાખ્યું હશે. either I left the job. So there is no fear, there is no moral check imposed. Okay, Jit, but apart from the moral check, let's continue with the topic. Moral check હોય તો એનું disadvantage ખરો કોઈ? Sir, moral check no disadvantage. We all discuss, all these points we discuss in the errors and frauds. Sir, spoiled quality of audit is kind of good disadvantage of moral check. Okay, qualities might be, yes, because see, when you frequently visit your client's place, so indirectly you are disturbing them. પછી બીજો એક disadvantage મેં કીધો તો, if you recall your memory. Disturbance. Moral check. चलो હું proper word use કરી દઉં. There is a close acquittance between the auditor staff and client staff. Continuous audit no disadvantage. Here I am using the proper auditing language. That is the close acquittance. Now what is the meaning here, the close acquittance? Ishi Nair from Subhanpura. What is the meaning close acquittance? कोई फ्रेंडशिप या रिलेशन हो सकता है जो क्लाइंट है, स्टाफ है और जो ऑडिटर है उनके बीच में, तो उसकी वजह से जो मतलब कुछ भी फ्रॉड हो सकता है और मिस्टेक्स हो सकता है. फ्रॉड मिस्टेक तो होता रहता है, फिर क्लोज एक्विटेंस से क्या होता है? लेकिन जीत ने कहा कि स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ द वर्क, तो इससे ये करेक्ट हुआ. कैसे? मतलब जो ऑडिटर है वो ज्यादा एक्शंस नहीं लेगा उसके अगेंस्ट में. हर महीने 15 दिन में आपके यहाँ पे आ ही जाता हूँ, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वी आर क्लोजली फ्रेंड्स, बराबर है? फिर क्या हो गया, तूने कोई गलती कर दिया तो मैं क्या करूंगा, ओवरलुक. हाँ ठीक, तो कोई बात नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं है, इसको सुधार ले, बराबर है? या तो ये भी हो सकता है कि तूने 25,000 का फ्रॉड किया और मैंने बोल दिया मुझे 5,000 दे देना, मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा. So these are called the disadvantages of the continuous audit. Okay, let's back to the comparison. मोरल चेक हो गया. एरर्स एंड फ्रॉड्स, यस, अगर कंटिन्यूस ऑडिट चलता रहा तो जून का अभी तक नहीं खींचेंगे हम लोग, जून का जुलाई में या अगस्त में हमें पता चल जाएगा, तो वी कैन कैच दोस फ्रॉड. सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूस. व्हाई दिस इज नॉट हैपन इन द एनुअल ऑडिट. इंटरिम डिविडेंड, कंपनी कैन डिसाइड एंड फ्रेम आउट द इंटरिम डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी रहेंगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर,
और मंथली बेसिस के ऊपर भी accounts to shareholders. Final accounts can be promptly prepared and presented before the shareholders. While preparation, the presentation of the final accounts is delayed as the entire audit work is done after the final accounts are prepared. That means here we can say the accounts are readily available for the shareholders on the periodical basis, but this is not so happen when you are performing the annual audits. Expenses, yes, this is the most important. Why I'm reviewing this? क्योंकि MCQ में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं. ये डिफरेंस को टिक करके रखो. MCQ में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं. तो एक्सपेंसेस कंटिन्यू ऑडिट इज एक्सपेंसिव. तो कोने पोसा है? बड़ी कंपनी, बड़ा वॉल्यूम, वहां पे कंटिन्यूअस ऑडिट. छोटी कंपनी को दे कैन नॉट बेयर द कॉस्ट. क्योंकि ऐसा समझो कि मैंने एक बंदा आपकी कंपनी के लिए ही हायर किया हुआ है, उसका पेमेंट आप मुझे कर रहे हो. पर मंथ आई एम चार्जिंग 25 to 30,000 रुपीज. तो उसमें से वो बंदे को मैं कितना दे रहा हूँ? 5,000 7,000 दे रहा हूँ. सो इट्स एक्सपेंसिव. सुटेबल कहां पे सुटेबल होगा? बड़े बिजनेस हाउस में सुटेबल होगा. while this is not happen in case of the small company. So this is the important difference. Okay, any other things? और कहां पे advantages of the audit? Open the advantages of the audit, page number 13, and please correct me if I'm wrong in the page numbers, because I might having the old copy, so in my copy there is in page number 13. Please open the topic 5, advantages of audit. 14. It is on 13. Okay, it is on page number 13. Advantages of the auditing. इसको भी टिक करके रखो. It's a अच्छा खासा मसाला है इसमें MCQ का. Advantages from the business point of view. Advantages from the business point of view. Then advantages from the investor's point of view, and then the other advantages are there from the business point of view. Audit करने के कोई advantage होते हैं नहीं होते कि खाली टाइम पास अच्छा? मानव फ्रॉम प्रताप नगर. यस सर. ऑडिट करने के एडवांटेजेस है या फिर है ना सर? वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम. है सर एडवांटेज. एडवांटेज है. अगर सपोज तेरा छोटा सा बिजनेस है जहां पे तेरा टर्नओवर लगभग 2 करोड़ का, तेरा 1 करोड़ 2 करोड़ का तेरा टर्नओवर है, सो इन दैट केस फॉर यू ऑडिट इज मैंडेटरी. So you are going to take audit in an advantageous manner or it's a burdensome for you? Advantageous. अगर तू खुद ओनर है और तूने मुझे हायर किया है ऑडिट के लिए, so it's advantageous for you or disadvantageous for you personally. Forget this accounts वगैरह भूल जा. सर एडवांटेज है. एडवांटेज है. क्या एडवांटेज है सर? वो ऑडिट के जो सब है पेपर, जो लोन लेना हो अगर बिजनेस में तो उसके लिए काम आएंगे. तेरे को कोई लोन नहीं लेना है. तू तो नहीं, आगे जाके सर कभी जरूरत यू बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून. तेरे को कोई लोन नहीं लेना है. दूसरा सर, अगर कुछ गलती हो गई तो उसका पता चलेगा. अच्छा, कोई एरर से तो जल्दी पता चल जाएगी. ये बेटा तू जो मुझे बता रहा है ना, ये सब कुछ तू मुझे थियरी बता रहा है. मैंने क्या पूछा? तू भूल जा, अकाउंट्स ऑडिट सब भूल जा. अब ऑडिट तुझे कराने का है तो तेरे लिए तू अच्छा ऑडिट, यानी ऑडिट कराना तू अच्छा मानेगा या फिर यार ये कहाँ यार ऑडिट कराना पड़ा? नहीं, जो भी है, गिव मी योर फ्रैंक ओपिनियन. सर करवाना अच्छा है. See, generally the human tendency, human mind, human psychology. अरे यार क्या ऑडिट करावानू आयो यार. पहला तो खर्चो 20-25 हजार रुपये ऑडिटर ठोक लेगा. दूसरा, वो ऑडिट करने आया तो तेरे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे. सब तेरे फ्रॉड, सब तेरे सेटिंग्स, सब तेरे प्लानिंग्स ओपन हो जाएंगे. क्या यार ऑडिट करावा है यार. ये प्रैक्टिकल होता है. 2 दिन पहले
एक का चेंजेस आया, अमेंडमेंट आया, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, बट फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जीएसटी पढ़ गए ना आप लोग लास्ट ईयर के? बाकी था पढ़ा ना जीएसटी? हृदय पढ़ा जीएसटी? बाकी हो तो सर। जीएसटी बाकी है तू? હા કેમ કોઈ મનીષ ગાંધી કરીને હતા, એમને તને ભણાવ્યું હતું ને જીએસટી? અડધું જ બનાવ્યું ને તમે હા, અડધું જ ભણાયું તો goes to the great lockdown. હા એ જ ओके, जीएसटी में लिमिट क्या है? जीएसटी में लिमिट्स क्या है? ऑडिट कराना जीएसटी किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी का? व्हाट इज द लिमिट? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको कराना पड़ेगा? जीएसटी किसको लेना पड़ेगा? 40 lakhs 20 लाख रुपीस। સર અમેન્ડમેન્ટ નતો આવ્યો? अमेंडमेंट आयु तू, पण अमेंडमेंट हवा अब जाके जीएसटी काउंसिल की 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर नाउ ऑफिशियली सेज कि हम लोग 20 लाख से लिमिट बढ़ा के 40 लाख कर रहे हैं। फिर भी सर्विस सेक्टर के लिए अभी भी 20 लाख ही रखा है, उसके ऊपर कुछ बोला नहीं है, कीप साइलेंस। तो सी यहाँ पे जो मैंने अभी मानव को सवाल पूछा था, दैट इज नाउ फॉर ऑल, कि जीएसटी में जब लिमिट 20 लाख था तो सब बोल रहे थे अरे यार मेरा टर्नओवर 25 लाख है, सिर्फ 5 लाख के लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर लेने में भी कोई बात नहीं है, चलो फ्री में आता है जीएसटी नंबर का, कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन कंप्लायंस जो है ना, फिर क्या करना पड़ेगा पता है? हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा, हर महीने जीएसटी टैक्स वसूल करना पड़ेगा। अब ना लोचा बहुत है यार, कंप्लायंस बहुत है। अब देखो ये लिमिट जैसे ही इन्होंने 20 से बढ़ा के 40 कर दिया, अब मेरा तो लिमिट ही है 25 लाख 30 लाख का मेरा वॉल्यूम होता है। यानी पहला काम पता है मैं क्या करूंगा? पहला मेरा जीएसटी नंबर में सरेंडर कर दूंगा। नहीं चाहिए जीएसटी नंबर। क्यों नहीं चाहिए भाई? ये सारे कंप्लायंस कौन करे? Are you getting me? The same thing happen in case of the audit. जब भी ऑडिट करना आता है ना, तो यार कहीं ऑडिट करवानो आयो, लेकिन ऑडिट में भी इन्होंने लिमिट बढ़ा दी है। दे आर कीप चेंजिंग द टैक्स ऑडिट लिमिट, टैक्स ऑडिट की लिमिट ये लोग बढ़ा रहे हैं। बट यस वी आर डिस्कसिंग द एडवांटेजेस। तो मानव ने अच्छे एडवांटेजेस बोले थे कि क्या बोला था उन्होंने? जो भी गलतियां पकड़ी जाएगी, जो भी एरर्स फ्रॉड्स है वो कैच कर लिए जाएंगे, राइट? एंड देयर आर, प्लीज ओपन द मटेरियल, एक बार थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड्स, लोन फ्रॉम द बैंक, ये भी मानव ने हाईलाइट किया। लोन लेना है तो बैंक वाले पहले ही मांगेंगे कि ऑडिटेड होने चाहिए अकाउंट्स, तो बैंक को क्या रहेगा? एक रिलायंस दे पुट ट्रस्ट ऑन इट, देन बिल्ड्स रेप्यूटेशंस। यस, अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड है, हम छाती खोले ना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट से जो लो, अनडाउटली प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स, because audit also covers the valuations, physical verifications and valuation of the assets and liabilities, so your books of accounts are authenticate. Government acceptance, अगर गवर्नमेंट में गए कहां पे सब्सिडी लेने के लिए, कहां पे लोन लेने के लिए। बाय द वे बात निकली तो एक बात बता दूं, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, पिछले 4 महीने से बताया मैं क्या काम कर रहा हूं। मेरे सारे क्लाइंट्स कौन हो गए? माय ऑल क्लाइंट्स आर कंपनीज। गवर्नमेंट ने सबको कोविड लोन दे दिए। क्या दिया है? कोविड लोन। दे यूज द नेम कोविड लोन, सारी कंपनीज को दे दिए। जो भी आपकी एक्सिस्टिंग लोन है ना, उसका 20% 25% आपको कोविड लोन दे दिया। अब मेरा लोन चल रहा है 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ का 25% 20%, यानी 20 लाख रुपए का लोन मुझे दे दिया। क्यों दिया भाई? आपकी कंपनी बंद थी, आपके एम्प्लॉइज को आप सैलरी नहीं कर पा रहे हो, आपके फिक्स कॉस्ट आप बेयर नहीं कर पा रहे हो। तो अभी प्रेजेंटली व्हाट आई एम डूइंग, जो भी कोविड लोन दी थी वो हमें चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। दैट मींस वी नीड टू इंटीमेट टू द गवर्नमेंट, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को हमें इंटीमेट करना पड़ता है। तो प्रेजेंटली आई एम डूइंग दोस वर्क्स, क्योंकि सारी कंपनी ने एडवांटेज ले लिया। सो आई एम लिंक द पॉइंट विद द गवर्नमेंट एक्सेप्टेंसेस। अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड है तो गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडीज वगैरह देगी। एंड सी देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स with whom you are dealing with: income tax, GST, excise, customs, and the food and drugs, and many other departments. And these all department always ask you the audited one. So it's a acceptance. Up to date accounts आपका ऑडिट होता रहेगा, तो अकाउंट्स भी अप टू डेट आपके मेंटेन रहेंगे। सजेशंस फॉर द इंप्रूवमेंट्स, ऑडिटर रेगुलरली आपके यहाँ पे आता रहेगा,
तो ऑडिट करता रहेगा, और आपको जहां पे भी कुछ गलतियां होगी तो आपको इंप्रूव भी कराता रहेगा. सो ऑल दिस आर द advantages useful for the getting the subsidies as we discussed. From the investment point of view, investors point of view, protect the interest. लोग अपना हार्ड अर्न मनी लगाते. शेयर मार्केट में चाय वाला भी इन्वेस्टमेंट करता है और करोड़पति लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो जब चाय वाला भी इन्वेस्टमेंट करता है, जब मार्केट तेज होता है, when the market is high, the present scenario of the share market is high, तो वो चाय वाला भी इन्वेस्टमेंट करता है. They are investing their hardcore money, hard money, hard earned money. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब ऑडिटेड हो गए तो अच्छा है ना. हार्ड अर्न मनी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है तो अच्छा है. फिर भी बहुत सारी चोरियां होती है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है, दो द ऑडिट इज कंपलसरी. मैं बड़ौदा का एग्जांपल दे दूं आपको, क्योंकि हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है फेस टू फेस ऑडिट डिस्कस करने की. सो आई एम यूजिंग द प्लेटफॉर्म. Zoom मीटिंग का मैं प्लेटफॉर्म यूज कर लूं. बड़ौदा में एक कंपनी, मेरी बनाई हुई कंपनी थी, years back somewhere in the year 2003 or 4 I frame a company. आप लोगों ने एक प्रोडक्ट देखा होगा, मैंगो सिप. देखा है प्रोडक्ट मैंगो सिप? पिया है मैंगो सिप? पिया है? Yes, sir. आपको अगर रिप्लाई देना है तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ बोलोगे तो मेरे तक आवाज नहीं आएगी. Yes, sir. यस नंदिनी? Yes, sir. क्या होता है उसका टेस्ट? किसका होता है? इट इज सिमिलर टू फ्रूटी स्लाइस. यस. ये बड़ौदा की कंपनी है. मनपसंद कंपनी का नाम है मनपसंद ब्रेवरेजेस लिमिटेड. मनपसंद ब्रेवरेजेस लिमिटेड, जिसका 3 साल पहले, लगभग 4 साल पहले जिसका आईपीओ आया था. बड़ौदा की कंपनी है, 4 साल पहले आईपीओ आया था. और इसका ब्रांड एम्बेसडर पता है कौन है? मैंगो सिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है पता है? रिद्धि? आलिया भट्ट? नहीं. यस नंदिनी, यू अनम्यूट योरसेल्फ. हु इज द ब्रांड एम्बेसडर? सनी देओल. हाँ, सनी देओल इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैंगो सिप. शेयर का भाव, मनपसंद के शेयर का भाव 200 रुपया चल रहा था, 200 रुपीज पर शेयर. वहां से हो गया 850 रुपये, 850. बड़ौदा की लोकल कंपनी है मनपसंद. एंड देन just last year the management director committed fraud with cell tax, either we can say GST. और GST में लगभग 200-300 करोड़ की चोरी पकड़ी गई. पता है शेयर का भाव क्या हो गया 1 साल के अंदर? 1 साल भी नहीं, सिर्फ 4 महीने के अंदर 5 रुपीज. 5 रुपीज. क्या भाव था? 850, 850. Many of my clients purchased the shares of 800, 600, 550. क्योंकि 800 का शेयर गिरते गिरते 500 आ गया ना. अरे यार ये तो अट्रैक्टिव हो गया. 800 न माल 500 में 5 रुपया हो गया. And presently today the rate is 0. The rate is 0. What is the reason? That the management committed the fraud. It's a pure fraud with the GST department. And जब GST के रेट बढ़ा ना, the company's CEO and company's CFO immediately arrested. नियम है GST के. So they immediately arrested and behind the bars. सीधे जेल में. तो शेयर प्राइस क्रैश. क्या ये मनपसंद लिस्टेड कंपनी का ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था भाई. मैंडेटरी है फॉर ऑल कंपनीज. ऑडिट इज मैंडेटरी. तो फिर ऑडिटर ने चेक क्या किया? So there is a lots of question marks are there.
What we are discussing advantages of the auditing. तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट. बोलो आवा केस में इंटरेस्ट क्या गयो? लेकिन इसका आंसर एक ही है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. Exceptions are always there. Otherwise, when we are talking at large, so it's protect. Moral check on the management, discuss in length. Proper valuation of the investments, good security. Good security. कि डायरेक्टर जो भी अपना पैसा लगा रहा है कंपनी, पैसा राइटफुल पर्पस में यूज करती होगी. अदर एडवांटेज में फैसिलिटेट्स इवैल्यूएशंस एंड कंपैरिजन. ये लास्ट टाइम की जूम मीटिंग में भी क्वेश्चंस पूछा गया था. लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स, ऑडिटेड अकाउंट्स उनको प्रेजेंट करना मैंडेटरी है. सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम्स, ये भी डिस्कस किया था. इंश्योरेंस क्लेम्स, इंश्योरेंस में जब भी क्लेम करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी ऑडिटेड अकाउंट्स दो हमें. वैलिड एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वैलिड एविडेंस दे वांटेड एंड वैलिड एविडेंस ऑलवेज अगर ऑडिटेड है देन इट्स अ वैलिड प्रूफ. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स, अगर दो पार्टनर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं रिलेटिंग विद द अकाउंट्स और अगर ऑडिटेड है तो उनका डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है. फैसिलिटेट्स कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पीसी. विजय सर पढ़ा रहे अमालगमेशन. पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन. डिफरेंट मेथड्स आर देयर फॉर द परचेज कंसिडरेशन, नेट पेमेंट, नेट असेट्स मेथड, लमसम मेथड. तो वो लोग आप जब नेट असेट्स गिनते हो तो क्या करते हो, असेट्स और लायबिलिटीज का लिस्ट बनाते हो. तो जब असेट्स और लायबिलिटीज का लिस्ट बनाते हो तो वो फिगर लाते कहां से हो? फिगर लाते हो बैलेंस शीट में से, इफ इट इज एट द बुक वैल्यू. वो बुक वैल्यू सही है क्या नहीं है वो क्या पता. वो इसलिए सही गिनी जाती है क्योंकि नीचे ऑडिटर का स्टैंप लगा हुआ होता है. फैसिलिटेट फॉर द टैक्सेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऑडिटर अकाउंट्स को रिलाय करता है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स गिना जाता है. So these all are the advantages. Okay. Now again the same questions. कोई सवाल, कोई शक? Anyone? Full length. कोई भी टॉपिक में, कोई भी पेजेस पे कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, so this is the opportunity with you. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने चेहरा नहीं दिखाना चाहते. इतिशा, while many faces are off. Vaishali Jha from Karelibag, I hope you are not sleeping. Sir, I always try to make the sessions live. Even my lectures, yes. સર આ જે ગુડ ક્વોલિટી ઓફ ઓડિટર છે એમાં જે એના ક્વોલિટી છે નંબરમાં એટલે નંબર છે કમ્પલસરી નંબર વાઇઝ જ લખવાનું કે આડાવડી ના બેટા, ના નંબર થાય તો કોઈ આડાવડા તો લખી શકે છે. When they ask you enumerate, that you can enumerate any of the numbers. ऊपर नीचे के તમે કરી શકો છો. No problem, no issues. પણ જો સમજો if I am the paper setter and I ask you 5 मार्क નો सवाल में पूछो 5 मार्क नो, enumerate any 5 qualities of a good auditor. So try to list out intelligent qualities. भाई તમે લખો is calm, common sense, બરાબર છે. એ તો બધાને ખબર છે યાર. જો તમારે મને અટ્રેક્ટ કરવો હોય, મને એટલે કે જે અસેસમેન્ટ કરશે તેને, then you need to mention the good qualities. Confidentiality, આ બધું મેન્શન કરો. પછી તમે લખો કોમન સેન્સ, ઓનેસ્ટી, એ બધું લખવાનો મતલબ નથી. માર્ક્સ તમારા કપાય નહીં, પણ 5 માંથી 5 જો જોઈતા હોય then you need to enumerate those intelligent qualities out of the 18, 20, whatever the qualities number given. Okay. Yes. Next. લેક્ચર જોયા પછી મટીરિયલ રિફર કરો, ખરેખર મજા આવશે તમને. કારણ કે લેક્ચર જોયા પછી મહિના પછી લઈને બેસશો ને તો કોઈ મતલબ નથી. ધેટ ઇઝ અગેન એન ક્વેશ્ચન માર્ક. નિઝામપુરા, Hello.
Yes, have you referred the material? Hello. Yes, Pratik, I am hearing you. Yes, sir. Sir. Material? कौन? Material refer किया? नहीं, sir. Why you are a new admission, right? Yes, sir. Okay, so what you need to do, I am giving you the homework in this week. Yes, sir. Watch all the my videos. Total 8 video है, 8 video देखो और material refer को I am giving you the 1 week time. Next Saturday I am personally interact with you. Okay, sir. Meanwhile, if you have any doubts, then you can WhatsApp me or you can call me. Yes. Okay, now students ready for the test. In the next week, I am going to conduct and test for the audit. 30 marks. 30 mark no test laisu avta week ma. So be ready and start reading. So next I am shooting a test for you. MCQ test, sir. Sorry? MCQ test. सर MCQ ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है. ये तो ऐसा ही मन की आवाज निकली. वो मोदी मन की बात करते हैं ना, तो ऐसा मन की आवाज आई कि चलो एक टेस्ट रखते हैं. हाँ सर, समझ गए वो तो हम लोग. तो एक टेस्ट भी ले लेंगे नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में आपको थोड़ा आराम भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग टेस्ट की प्रिपेयर कर सको. बिकॉज एज वी कंप्लीटेड द यूनिट नंबर 1 एंड आई डोंट वांट टू रन फास्ट विद द सिलेबस. तो नेक्स्ट वीक में मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा. नेक्स्ट वीक में मेरा कोई जूम मीटिंग भी नहीं होगा. तो नेक्स्ट वीक में होगा क्या सर? नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा, राइट? तो ये पूरा वीक आपको ऑडिट का प्रिपरेशन करना है. यस यस रिद्धि. ટેસ્ટ લો એવી ટાઈપ ના તો છો નહીં, કેમ હવે ટેસ્ટ લેવો છો તમારે? ના, एक्चुअली आई एम गोइंग टू इवेल्युएट माय सेल्फ कि હું બરાબર તો ભણાઈ રહ્યો છું કે નહીં. दैट आई एम गोइंग टू इवेल्युएट माय सेल्फ. एकदम सर. તમે ભણાવો જ છો. एकदम जोरदार ભણાવો. એવું? હા સર. ના, તું આટલું બધા વખાણ કરીશ તો બી હું તને 2 માર્ક વધારે આપું એવું નહીં થાય. મને તને તાળાને ઝાડ પર ચડાય. ओके, चलो विशिंग यू ऑल द वे. यस, हियर हैत शाह रेज द हैंड. यस हैत. सर. यस सर, वो आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में सत्यम कंप्यूटर्स का एग्जांपल दिया था, वो एग्जैक्टली फ्रॉड क्या था? ऐसा समझो कि पूरा ऑडिट जो है वो ऑडिट में पूरा सत्यम कंप्यूटर ही हमारा हाईलाइटिंग रहने वाला है. सत्यम कंप्यूटर से इंटरेस्टिंग केस है. लगभग 7.5 से 9,500 करोड़ का फ्रॉड था. 7,500 to 9,500. सत्यम में हुआ ये, द सत्यम्स ओनर, दैट इज द रामालिंगन राजू, he was the owner or he was the owner of the Satyam computer. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कन्फेस किया. कन्फेस खबर છે ને, પેલું ચર્ચમાં જઈને કન્ફેસ કરીએ છે. હા, કે ભગવાન મને માફ કરજો, મેં ઓડિટ નું મટીરીયલ વાંચ્યું નથી, મારી ભૂલ પર થઈ ગઈ છે. તો રામાલિંગન રાજુ ने अचानक in the year 2008, I think 1st January, the early morning, he confessed. प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया, कन्फेस ये किया कि सत्यम कंप्यूटर्स में पिछले 5-6 सालों से मैं चोरी कर रहा हूं, मैं फ्रॉड कर रहा हूं. सत्यम कंप्यूटर में हुआ ये. बाय द वे, हैड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सत्यम? प्लीज स्पेल आउट सत्यम. SATYAM. करेक्ट. रामालिंगन राजू के लड़का था, उन्होंने कंपनी बनाया माइटास इंफ्रास्ट्रक्चर. माइटास का नाम कैसा है पता है? सत्यम का रिवर्स. सत्यम को उल्टा लिखोगे देन इट्स कॉल्ड माइटास. तो माइटास इंफ्रास्ट्रक्चर करके कंपनी बनाया. सत्यम का कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? आईटी सॉफ्टवेयर. और माइटास का था इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह. सत्यम का जो भी पैसा था वो उन्होंने डाइवर्ट किया माइटास में, जो नहीं कर सकते.
ऑफिशियली यू कांट डाइवर्ट द फंड ऑफ सत्यम कंप्यूटर टू द माइटास, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट किया। फ्रॉड कैसे किए? फ्रॉड किए बैंक कंपनी की एफडी के साथ। एफडी लगा बोलते ना, फिक्स डिपॉजिट। तो कंपनी की जो फिक्स डिपॉजिट थी उन्होंने क्या किया, बैंक में से डुप्लीकेट निकाली और डुप्लीकेट निकाल के उन्होंने एनकैश कर लिया। जब ऑडिटर आता था तो उनको बताते थे ओरिजिनल देखो अभी तक ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही है, लेकिन वो पैसा खा गए थे। फिर और एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया उन्होंने रिलेटिंग विद द सैलरी। अब आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी में जनरली कौन बंदे काम करते होंगे? आईटी इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का सैलरी क्या होता है? हैदराबाद में, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, उनका सैलरी होता है पर मंथ 50,000, 90,000, डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपीरियंस। उन्होंने अपॉइंट कर दिया, किसको बताया? अब देखो आईटी कंपनी में रिक्रूटमेंट होता है, तो जितने भी अपने यहाँ पे बंदे हैं, अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, हाँ लगभग 43 पार्टिसिपेंट है, तो 43 पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया है। यानी आप सब लोगों के सीवी मेरे पास है, यानी आप सब लोगों की डिटेल्स मेरे पास है, नाम, एड्रेस सब है। अब इसमें से मैंने क्या किया, 43 में से फिर 3 बंदों को अपॉइंट किया, बाकी के 40 के रेशियोज में मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने बुक्स में बताया क्या दिखाया? डमी वर्कर्स। एरर्स एंड फ्रॉड्स में मैंने बताया था डमी वर्कर्स। मैंने बता दिया हैत शाह इज एम्प्लॉय इन माय कंपनी एंड आई एम पेइंग सैलरी 50,000 पर मंथ। 50,000 रुपया पर मंथ, यानी साल का कितना हुआ? 6 लाख रुपया हुआ। तो 6 लाख मैंने विड्रॉ कर लिया। हैत शाह मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय है, लेकिन एम्प्लॉय सेमा तो खाली बुक्स में तो चौपड़ा में, नो फिजिकल, दैट मीन्स नॉट ए एक्चुअल वन। तो इस तरह से बहुत सारे एम्प्लॉइज, तो उनका सैलरी उन्होंने इस तरह से डाइवर्ट किया। सो इट्स अ बिग फ्रॉड। और उसका वो जेल भी गए और अभी तो जेल से उनकी सजा भी खत्म हो गई और नाउ प्रेजेंटली इज आउट। लेकिन जिस तरह ये सत्यम का जो हुआ था, जैसा मैंने मनपसंद का आपको बताया, इसी तरह से सत्यम का भी जो कांड हुआ, इन्फोसिस के बाद सत्यम का नाम आता था। इतनी बड़ी इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी थी। पहला नंबर 1 इन्फोसिस, सेकंड सत्यम, तीसरा आता था विप्रो, क्योंकि उस टाइम पे टीसीएस मार्केट में नहीं था। नाउ प्रेजेंटली इंडिया की नंबर 1 कंपनी है टीसीएस, सेकंड कंपनी इज इन्फोसिस, थर्ड इज एचसीएल टेक्नो, बहुत सारी कंपनीज है ऐसे। तो ये तो मैंने तेरे को बेटा 2 हाईलाइट बताई, एक सैलरी वाला बताया बराबर, और दूसरा वो फंड डाइवर्जन वाला बताया है, राइट। और बहुत सारे, हाँ, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड गूगल करो, पूरा आर्टिकल आएगा व्हाट काइंड ऑफ द फ्रॉड्स दे कमिटेड। ओके, इंटरेस्टिंग। यस, एनीवन एल्स? और यस, डब्ल्यू वर्कर कहता है कि वर्कर एक्चुअली अगर बीजी कोई जगह काम करता है तो डबल सैलरी ना देता है, इनकम टैक्स तो कटता है ना 2,50,000 ऊपर लिमिट है तो। नहीं, एक मिनट, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन, बिकॉज plenty of sounds I am hearing. Yes, Ritik. सर डमी वर्कर बतायो तो એ વર્કર બીજી બી કોઈ જગ્યાએ કામ કરતું હશે કે નહીં? તો અગર અહીંયાનો સેલરી 6 લાખ બતાવો તો 2,50,000 તો સ્લેબ છે, તેના પર તો ઇન્કમ ટેક્સ એને ભરવો પડે ને, તે વર્કરને ના ખબર પડે કે ડબલ સેલરી અને ડબલ ઇન્કમ ટેક્સ મારા નામ પર? તને ખબર પડી? બોલ. મેં મારા મનીષ ગાંધી એન્ડ કંપનીમાં રિદ્ધિ શાહ મારે ત્યાં નોકરી કરે છે એવું બતાવ્યું છે મેં, અને હું દર મહિને રિદ્ધિ શાહને 7,000 રૂપીસ નો સેલેરી આપું છું. તને ખબર છે? ના. તારું નામ, એડ્રેસ બધું જ મારા ચોપડામાં લખેલું છે, અને હું દર મહિને 5,000 રૂપિયા રિદ્ધિ શાહને સેલેરી આપું છું. તને ખબર છે? અગર કઈ ફ્રોડ થાય તો મને તો ખબર જ નથી ને. હા, પણ તને નથી ખબર? તો મેં ક્યાં કીધું કે યુ આર રિસ્પોન્સિબલ? ઇન ધેટ કેસ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિસ્પોન્સિબલ. પણ હું કાલે ઉઠીને તને એવું કહું, રિદ્ધિ આપણે ઇન્કમ ટેક્સની નોટિસ આવી છે, તો જરા કાલે આવી જજે ને અહીંયા, અને પેલા સાહેબ તને પૂછે કે હા તમે અહીંયા મનીષ ગાંધીને ત્યાં જોબ કરો છો, તો હા કહેજે ને હા હું જોબ કરું છું. તું ના થોડી પાડવાની છે મને. આટલું તો મારા માટે કરી શકે ને તું? સર મને સેલરી ક્યાં મળ્યો તો તમે કેમ કરું? आई एम एक्सप्लेनिंग द डमी वर्कर्स कंसेप्ट एंड हाउ इट वर्क्स. और ये सिर्फ मेरे यहाँ पे नहीं यार, मेरे यहाँ पे नहीं यार, सब जगह ये होता ही होता है. 99% financial statements are not giving you true and fair views. 99%.
Okay. Yes, Navank, OP Road. हेलो सर। सर ये जो ऑडिटर्स आते हैं वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आते हैं या लाइक द कंपनी कॉल्स देम व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड, लाइक चलो ऑडिट करने, या कंपनी स्पेशली दे कॉल देम? नहीं, ऐसा नहीं होता. It depends with the agreement. It depends with the arrangements with the company. कैसे देख, तूने that means you would like to appoint me as your company auditor. तो पहले मैं तुझे, हम पर्सनली मिलेंगे. Either I need to come to your office or you need to come to my office and we will make an arrangement. पहले मैं तेरे को पूछूंगा, बेटा तेरा टर्नओवर कितना है, तेरे यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, तेरे यहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम है. तूने कहा कि सर मेरा टर्नओवर जो है ना सर वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, यानी यू आर अ स्मॉल कंपनी. ठीक है, फिर मैं इवेल्युएट करूंगा कि तेरे यहाँ पे काम कितना है, राइट, एंड तेरे यहाँ पे क्या सूट होता है. तो तेरे यहाँ पे सूट होता है फाइनल ऑडिट, नॉट द कंटिन्यूअस ऑडिट. यानी मैं तेरे यहाँ पे ऑडिट करने कब आऊंगा? वंस यू कंप्लीट योर फाइनल अकाउंट, फाइनलाइजेशन, जब तेरा मार्च में यानी जून जुलाई में जब तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार हो जाएगा, बाद में मैं तेरे यहाँ पे ऑडिट करने आऊंगा. तो एट दैट टाइम ऑडिट करने से पहले आई नीड टू टेक योर अपॉइंटमेंट. एक काम करता हूं, देखो ये आज अगस्त महीना खत्म हो रहा है, 1 सितंबर को सर मेरे 2 आदमी आपके यहाँ पे ऑडिट करने आ जाएंगे, पर ज्यादा काम नहीं है, वो 1 वीक आएंगे, बराबर. अब सपोज वही वीक में तेरे यहाँ पे कुछ फंक्शन है या तेरी कंपनी में कुछ रिपेयरिंग काम चल रहा है, व्हाटएवर इट्स इनकन्वीनियंट टू यू, देन यू कैन रिक्वेस्ट मी, सर एक काम करते फर्स्ट वीक में नहीं सेकंड वीक में रखते. तो बोला ठीक है, सेकंड वीक कर देते. So it depends between the mutual understanding. तो सर ऐसा कंटिन्यूअस ऑडिट बेनिफिशियल मतलब ये रहेगा कि एनुअल ऑडिट कैसा कंपनी के लिए? मनी, तू जब कंटिन्यूअस ऑडिट कराना चाहता है तो पता है क्या होगा, रिद्धि शाह मेरे यहाँ पे जॉब करती है, बराबर है. तो मैंने रिद्धि को बोल दिया कि भाई हर महीने 15 दिन तुझे यूविल क्लास का ऑडिट करने जाना है. अब जब मैं अपना एक आदमी तेरे ऑफिस पे एंगेज कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई एम चार्जिंग मोर. भाई हर महीने तुझे 10,000 रुपया मुझे देना है, ये अपने दोनों के बीच में फीस हो गई, बराबर 10,000 रुपया, बिकॉज रिद्धि विल बी ऑन माई पेरोल, वो मेरे पेरोल पे है, वो मैं उसको 3,000 देता हूं 5,000 देता हूं, वो मेरा कंसर्न है. यू नीड टू पे मी 10,000 रुपीज. तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि वो एडवांटेजेस नहीं. हाँ, एडवांटेजेस कब होता, अगर तेरी बड़ी कंपनी है, बट व्हेन यू हैविंग अ स्मॉल साइज ऑफ द बिजनेस देन इट्स नॉट एन एडवांटेजेस फॉर यू. ओके सर, थैंक यू. चलो और कोई? ओके, सो वी टुडे एंड अवर सेशन हियर. कोई किसी को सवाल नहीं है, और अगर कोई भी डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी, एंड एज आई रिक्वेस्टेड आई रियली अप्रिशिएट यू कॉल मी आफ्टर 4 o'clock, क्योंकि 4 बजे के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूं थोड़ा, राइट. सो लेट्स एंड व्हाट्सएप मीटिंग टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द इंटीमेशन. तो नेक्स्ट वीक कोई भी वीडियो नहीं आने वाला है, एंड पीछे पड़ जाओ यूनिट नंबर 1 के and ready for the test. Wishing you all the best and see you in the next time. Bye. Bye, sir. See you. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir.